کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو سفارتی معاملات ہیں اس سے متعلق ہم چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ حقیقت تو کچھ یوں ہے کہ جب سے بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ کا منصب سنبھالا ہے، ہمیں سفارتی محاذ پر جو ہے وہ ایک سے لے کر دوسری یعنی کہ یوں کامیابیوں کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے اگر ہم خارجہ امور پر بات کریں یا اس حوالے سے ہم تجزیہ کریں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ پاکستان تقریباً آئسولیشن میں جا چکا تھا۔ ہمارے دوست ممالک بھی جو ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہو چکے تھے، ہم سے نالاں تھے، ہمیں کوئی بیل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بیل آؤٹ تو کیا، کوئی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ منصب سنبھالا ہے اس کے بعد ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ہمیں کامیابیاں پہ کامیابیاں جو ہیں وہ ملتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ دوست ممالک جو ہم سے ناراض ہو گئے تھے، جو ہم سے روٹھ گئے تھے، جو ہم سے نالاں تھے، وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اب ایک دوسرے سے بڑھ کر پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی امداد کر رہے ہیں، پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، صرف معاشی طور پر نہیں بلکہ سیٹ آف انٹرنیشنل یعنی کہ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، ہماری سفارتی پالیسیوں پہ جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کی نظیر جو ہے وہ موجودہ دور میں ملنا محال ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز تھا، جیسے اس کو انہوں نے جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق ریوائیو کر کے جو ہے وہ اثر نو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ کامیابیوں سے پر کامیابی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد کسی وزیر خارجہ کا دورہ ہوا عراق کا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عراق کا دورہ کیا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زیارات کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے عراقی حکام سے ڈسکشنز کی، عراقی حکام سے جو ہے جو انہوں نے ملاقاتیں کی، اب اس کے ثمرات جو ہیں وہ اب پاکستان کو مل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں گے یا نہ کریں، پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی میگا ڈیفنس ڈیل جو ہے وہ عراق کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس کی کے اندر بلاول بھٹو زرداری کا جو کردار ہے وہ جو ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی کہ یعنی کہ انہوں نے ان پرسن وہاں پہ جا کے اس ڈیل کو جو ہے وہ کامیاب کرانے میں اپنا حت المقدور کردار ادا کیا، اور اسی وجہ سے 1.8 بلین ڈالر کی یہ ڈیل ہے۔ یعنی کہ پاکستان جو ہے یوں اگر ہم ڈیفنس حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا جو ہے وہ خود پاکستان دنیا کے دیگر ممالک سے اسلحہ لیتا رہا، لیکن اب ایسی صورتحال پاکستان کی بن چکی ہے کہ JF تھنڈر سے متعلق پاکستان نے جو ہے وہ شیئرنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے چائنا کے ساتھ خود اپنے بلاکس بنائے، خود جو ہے وہ اس حوالے میں جو ہے وہ خود کفیل ہوا۔ تو اب پاکستان کے پاس سب سے بڑا پاکستان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ جہاز تو بنا لیے ہیں، اب انٹرنیشنل منڈی میں اس کے جو ہے وہ گاہک ڈھونڈے جائیں، اور یوں جب دنیا میں کمپٹیشن ہے تو کون پاکستان کے جہاز خریدے؟ وہ چین سے بھی وہی جہاز لے سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ فرانس سے رافیل طیارے لے سکتے ہیں۔ تو یوں بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے موجود تھے عالمی سطح کے اوپر، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جب دورہ عراق پہ گئے تو ان کے پاس یہی ایک سب سے بڑا ٹاسک تھا کہ کسی طریقے سے میں پاکستان کی یہ میگا ڈیفنس ڈیل جو ہے اس کو کامیاب کروں، اس کو ہمکنار کروں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سب سے بڑی یہ خبریں چلا رہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل عراق کے ساتھ جو ہے وہ طے ہو چکی ہے۔ تقریباً 12 JF جو تھنڈر ہیں، JF-17 JF-17 اس کی جو ہے وہ ڈیل تقریباً اپنے اس میں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ عراق نے پاکستان کو آرڈر دے دیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تو کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ سارا کا سارا صحرا جو ہے وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ لیکن اب دنیا میں کمپٹیشن ہے تو سنا یہی ہے کہ فرانس بھی جو ہے وہ اس میں انٹر ہو چکا ہے، اور فرانس جو ہے وہ عراق کو جو ہے وہ آفر کر رہا ہے کہ اس سے رافیل طیارے جو ہیں وہ خریدے جائیں۔ لیکن اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مرکز میں رہے اور وہ اس محور پہ رہے، خارجہ امور پہ رہے، تو ضرور
बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये डील कराई है इसको तोड़ भी पहुंचाएंगे, इसको जो है वो हतमी तौर के ऊपर भी जो है इसको कामयाबी से हम किनार करेंगे। तो ये सेहरा जो है वो पाकिस्तान के इस नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को हो जाता है, जिसके बारे में प्रोपेगेंडा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यूँ तो एक बुग़्ज़े भुट्टो एक शुरू से एक बीमारी है, जिसके बारे में बकौल वो जो जियाले हैं वो ये कहते हैं कि ये एक ला इलाज मर्ज़ है। अब बिलावल जो है वो कुछ भी अच्छा करे, लेकिन जो इस बुग़्ज़े भुट्टो में का शिकार हैं उन्होंने तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करना है। आपने हाल में देख लिया कि जापान का बड़े अरसे बाद जो है जापान का दौरा किया गया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, और जापान जो है वो पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बड़ा तिजारती पार्टनर है, तिजारती साथी है। तो अब उसका दौरा कितनी अहमियत का हामिल था, लेकिन यहाँ पर जो है एक मखसूस टोला जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ़ा भुट्टो जरदारी जो उसके साथ गई तो उनकी किरदार कशियों पे लग गए। अब ये प्रोपेगेंडा किया गया कि आसफ़ा किस कैपेसिटी में गई। उन अक्ल के अंधों को ये बतलाना ज़रूरी है कि आसफ़ा भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पोलियो की एम्बेसडर है, और जापान जो है वो पोलियो का सबसे बड़ा डोनर है। अगरचे आसफ़ा भुट्टो जरदारी जो है वो सरकारी काम से गई, रियासती काम से गई, लेकिन उन्होंने अपने भाई की तरह तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए। ये वज़ारत ख़ारजा का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, वज़ारत ख़ारजा के रिकॉर्ड के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी जिस भी मुल्क का सफ़र करते हैं, सरकारी सफ़र होता है, स्टेट के काम से वो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जेब से जो है तमाम अखराजात, टिकट्स, होटलिंग, वो सारा कुछ जो है वो अपनी जेब से अदा करते हैं। तो ये आसफ़ा भुट्टो जरदारी ने भी ये ऐसा ही किया। लेकिन उस दौरे के अगर हम फ़ायदे देखें जो जापान के साथ हुए, वो भी नाकाबिले जो है मिसाल हैं, उसकी नज़ीर नहीं मिलती कि पाकिस्तान कितना जो है वो कामयाब हुआ। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि रूस के साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने हम आहंगी पाकिस्तान की दोबारा पैदा की, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। शायद आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो रूस के साथ मुआशी या तिजारती ट्रेड है वो 50% बढ़ गई है। ये कब से हुआ? जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मॉस्को का विज़िट किया था और वज़ीर ख़ारजा के साथ उसकी गपशप हुई थी। उसके बाद एनर्जी से लेकर तिजारती तौर के ऊपर उन्होंने जो हम आहंगियाँ पैदा की, उसका रिज़ल्ट आज ये मिल रहा है कि पाकिस्तान और रूस ने जो है वो इंटरनेशनली जो कॉरिडोर हैं उसको एक्सप्लोर करके अब जो है वो ट्रेड रूट के लिए जो है वो बाई लैंड ट्रेड रूट जो है वो भी एक्सप्लोर कर लिए हैं। एनर्जी की डील आपने ख़ुद देख ली कि रूस के 2 जहाज़ यहाँ पे जो है आयल के पहुँच चुके हैं, और जो दूसरी लिक्विड गैस होती है LNG और LPG उसकी भी जो है बाकायदा सप्लाई जो है वाया इन रूट्स के जो है जो ज़मीनी लैंड रूट्स हैं वाया अफ़गानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड हो रही है, वो मिल रही है। और यूँ ही तो वज़ीर ख़ारजा जो है रूस के, उन्होंने कहा था कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमसे जो है वो एनर्जी की बात की। उन्होंने कहा हमें याद पड़ता है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पहले दौरे के ऊपर अपने मॉस्को आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एनर्जी की डील रूस के साथ तय की थी। तो उन्होंने कहा हम इस डील को जो है वो की अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसको कामयाब करेंगे। तो ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है आलमी सतह के ऊपर जो है या इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में कामयाबियां हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि इंडोनेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है कितने साल बाद, तकरीबन 15 से 20 साल बाद, पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और हिना रब्बानी वज़ीर ख़ारजा थी तो उसने विज़िट किया था। उसके बाद हमारे जितने भी वज़ीर ख़ारजा आए, जितनी भी हुकूमतें आई, किसी को ज़हमत ना हुई कि इंडोनेशिया को जो है वो जो हमारा अच्छा दोस्त मुल्क है उसको सफारती तौर के ऊपर पाकिस्तान की हम आहंगी पैदा की जाए। लेकिन ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वहाँ पे गए और उन्होंने दोबारा जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उसकी तजदीद की। और इस तरीके से अगर अब मैं आपको क्या क्या मिसाल दूँ, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। और फिर सबसे बड़ा जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बतौर वज़ीर ख़ारजा कारनामा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि वो तमाम तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए है जिनका रहनुमा किसी दौर में बिलावल का नाना भुट्टो शहीद भी समझे जाते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो क्लाइमेट जस्टिस है इसका फ़ंड जो है वो कायम कराया, क्योंकि
दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं उनकी जो सनतें हैं वो अपने नाजायज़ प्रॉफिट की वजह से माहौलियात को नुकसान पहुँचाती हैं और खमियाजा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफ्रीका जैसे गरीब ममालिक जो है वो भुगतना पड़ता है। और इसका मुकदमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो UNO में खूबी लड़ा और फिर उसके नतीजे के अंदर जो अक़वाम आलम है वो उसको मजबूर किया कि वो इन गरीब ममालिक के लिए जो है वो क्लाइमेट जस्टिस फ़ंड जो है वो क्रिएट करे। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो इस नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। और यूँ अगर एक एक उनके दौरे की आप चीज़ें उठा लें तो कामयाबियों से जो है वो सारी चीज़ें मुबर्रा हैं, भरी पड़ी हैं, यानी कि कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हमें नज़र आती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे उनको जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के तौर के ऊपर देखा जाता है, आसिफ अली ज़रदारी के बेटे के तौर के ऊपर देखा जाता है, और उनको जो है वो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बेटे के तौर के ऊपर देखा जाता है और उनको वो प्रोटोकॉल भी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ बात ये है कि लोग कहते थे कि जी वो इंटर्नशिप पे है, उसको क्या ख़बर ख़ारजा अमूर क्या होते हैं। और बात ये है जिसके नाना ने जो है वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की सिमत तय की हो उसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। उसको तो विरासत में ये ख़ारजा अमूर मिले हैं नाना से, जो सेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कैम करके गए थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने उन्हीं अपने नाना के जो सेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको री इन्वेंट करके जो है अप्लाई किया है और इसी वजह से पाकिस्तान को आलमी महाज पर जो है वो कामयाबियाँ मिल रही हैं। अब मुआशी तौर के ऊपर आप देख लें कि सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान को जो है वो दोस्त ममालिक की जानिब से जो ट्रेड जो ये इमदाद मिल रही है। देखिए चाइना ने $4 अरब का कर्जा जो है वो वेव आउट किया है, इसके साथ साथ $3.5 अरब उसने मज़ीद देने हैं। अच्छा, फिर ये जो IMF के साथ डील हुई है ये ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इसका क्रेडिट वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी जाता है। और फिर इससे बढ़ के जो है वो अगर आप देखें कि आज जो है वो UAE की जानिब से $2 अरब पाकिस्तान को दिए गए हैं। अब $1 अरब मज़ीद मिलना है। वो पाकिस्तान जो कभी दिवालिया हो रहा था अब इन दोस्त ममालिक और कामयाब सफारतकारी की वजह से अब हमारे ख़जाने में जो है वो 11 तकरीबन यानी $12 अरब का जो है वो पैसे या ज़र मुबादला आप कह सकते हैं वो जमा हो चुके हैं। वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से भी कहीं आगे डिफ़ॉल्ट से निकल चुका और अब तरक्की की रास्ते के ऊपर जो है वो गामज़न है। तो इन सारी चीज़ों का क्रेडिट बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़रूर जाता है, लेकिन वो बात वही है कि जो बोझ में भरे पड़े हैं उनका तो अब कोई इलाज ही नहीं है। अब हम उनको क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।